موجود ہے اس وقت ادارہ تعلیم القرآن اور ہمارے استاد جی مفتی اعجاز صاحب موجود ہیں. بڑی پیاری گیدرنگ ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے 2002 کے جو بیچ فارغ ہوا تھا فضلاء کا، تو آج وہ یہاں جمع تھے. اللہ پاک ان کو بہت ترقیاں دے. ترقیاں دے دی. مدرسے کو جب شروع کیا گیا اس وقت تو صرف جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تعلیم ہی تھی، لیکن جیسے جیسے حالات آگے چل رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سسٹم شروع کیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی اسکول کی تعلیم بھی ہونی چاہیے. الحمدللہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے ہمارے لیے، اور ہمارے اساتذہ کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ تربیت ہماری کی، اور ان کے اخلاص کی برکت سے یہ کام ہو رہے ہیں جی اداروں کا. جی ہم موجود ہیں اس وقت ادارہ تعلیم القرآن اور ہمارے استاد جی مفتی اعجاز صاحب موجود ہیں. بڑی پیاری گیدرنگ ہے اور پورے پاکستان سے جو جامعہ امدادیہ کے 2 سے 2002 کے فارغ التحصیل کراچی سے، لاہور سے، وسعت آباد سے اکٹھے ہیں. استاد جی کا بڑا پیارا بیان ہو اور استاد جی سے بات کرتے ہیں. استاد جی دوستوں کا اکٹھا ہونا بڑی زبردست، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، اپنے لیے بھی ٹائم نکال لیں. یہ واقعی آج کے دور میں ہم نے ختم کر دیا، اور آج دوست بڑے اچھا ہوئے اور بڑا اچھا ہلا گلا، اور ہر چہرہ مسکرا رہا ہے. جو کہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے ڈراتے تھے ڈرتے تھے، آج مسکرا رہے. تو کیا کہیں گے استاد جی؟ ماشاءاللہ. یہ ہمارے 2002 کے جو بیچ فارغ ہوا تھا فضلاء کا، تو آج وہ یہاں جمع تھے. یقیناً دوستوں کا آپس میں مل بیٹھنا یہ زندگی میں جاری رہنا چاہیے، اور آج ماشاءاللہ اپنے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہ حضرات آئے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کی ملاقات، جیسے آج یہ ملاقات ہے نا، اس کے لیے آئے ہیں، تو فرمایا جب وہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے بارے میں 3 باتیں کہتے ہیں. ایک یہ طیبتا کہ تو خود بڑا پاکیزہ ہے، دوسرا کہا جاتا ہے تیرا چلنا بڑا پاکیزہ ہے، اور تیسرا کہا جاتا ہے کہ تو نے اپنے اس عمل سے جنت میں اپنی جگہ بنا لی. تو یقیناً یہ ملاقات صرف ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے، یہ پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے اور حصول جنت کا بھی ذریعہ ہے. تو الحمدللہ آج یہ نوجوان آپس میں ملے ہیں جنہوں نے 8 سال 10 سال اکٹھا سفر کیا ہو. پھر جب وہ آپس میں جدا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جدائیگی کو محسوس تو کرتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو ماضی یاد آتا ہے تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ پرانی یادیں بھی تازہ کریں گے آج، اور آپس کے اندر بیٹھ کر اپنا کوئی مذاکرہ، کوئی آئندہ کا لاہ عمل، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آج زندہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے کاموں میں ترقیات عطا فرمائے. جی آج بیٹھیں گے اور باتیں بھی ہوگی، مذاکرہ بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی کی دعائیں ہیں. بیٹھے ہوئے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک ان کو بہت ترقیاں دے. ترقیاں دے دی. ٹھیک ہے. جس میں موجود ہیں ہم ادارہ تعلیم القرآن جو ایریا چبا میں، جو کہ ادارہ تقریباً 1982 سے چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ 500 سے زیادہ طلبہ جو ہے وہ فارغ التحصیل ہو گئے. اور یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ یہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور اس میں تقریباً 100 کے قریب جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس سارے پروجیکٹ کو جو دیکھ رہے ہیں وہ مولانا طارق صاحب دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. مولانا صاحب آج کے دور میں بڑا زبردست ہے کہ آپ ایک دین کی تعلیم بھی چل رہی ہے، دنیا کی چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ جو انبیاء کرام کا کام تھا وہ ایک تبلیغ کو لے کے چلنا دین کا، تو بڑا اچھا زبردست چل رہا ہے. تو کیا کہیں گے کیسے پروجیکٹ سارا لے کے چل رہے ہیں، اور کیا کیا آپ کو مشکلات آ رہی ہیں، کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ ابتداً تو اس مدرسے کو جب شروع کیا گیا اس وقت تو صرف جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تعلیم ہی تھی، لیکن جیسے جیسے حالات آگے چل رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سسٹم شروع کیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی اسکول کی تعلیم بھی ہونی چاہیے. کیونکہ بچہ جب 2 3 4 سال حفظ میں لگا کے اسکول میں جاتا ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے کہ اگر ساتھ ساتھ بچہ کرتا ہے نا تو اسکول کا بھی، جس دن بچہ فارغ ہو کے اسکول جاتا ہے تو اس کے لیے مسائل نہیں ہوتے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آج کے دور میں والدین کی طرف سے ڈیمانڈ بھی اسی چیز کی ہے. تو جب سے ہم یہ سیٹ اپ لے کے چلے ہیں، الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بہت ترقی ہوئی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 3 کلاسوں میں 85 بچے حفظ کر رہے ہیں، جو سارے مقامی ہیں، یعنی رہائشی کوئی نہیں ہے اس میں. تو 3 کلاسیں ہماری اس وقت چل رہی ہیں ادارے میں، اور ہم جو ہے نا وہ
इसको यानी कि एक इदारे को एक नई तरज पे लेके चल रहे हैं, यहाँ कुरान पाक की तालीम भी और साथ दुनियावी तालीम भी। अच्छा करते ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इसके साथ मुलाकात गुलिस्तानपुर में बड़ा इलाका है, निगवानपुरा है, इस्लाम ये अपना कहते हैं इस्लामिया पार्क है, तो ये इलाके हैं, यहाँ अगर लोगों ने बच्चों को अपनी तालीम के लिए आना हो तो क्या राब्ता वगैरह कैसे करते हैं, या मस्जिद में है कोई नंबर है? जी, बाहर हमारे जो है ना मस्जिद के बाहर बोर्ड भी लगे हुए हैं, उन पे नंबर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। हमारा फेसबुक पे पेज भी चलता है, उस पर भी राब्ता नंबर है, ठीक है। तो अगर किसी ने आना हो तो यानी कि मस्जिद तो जाहिर बात है नमाज के बाद बंद हो जाती है, तो पिछली गली में मदरसे का दरवाज़ा है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 सवा 2 बजे तक मैं यहाँ मौजूद रहता हूँ, वो आ सकते हैं एडमिशन के लिए आना चाहें और मालूमात के लिए आना चाहें, तो मैं हर वक्त इधर या क्लास में मौजूद होता हूँ या ऑफिस में मौजूद होता हूँ। ये सुबह 8 से 2 बजे तक मौजूद होते हैं। अभी नीचे आपके पास नंबर भी आ रहा होगा, आप सुबह 8 से 2 बजे आने से पहले राब्ता भी कर सकते हैं। मस्जिद की बैक पे जो मदरसा है। अच्छा, आज ये बड़ा जबरदस्त एक बड़ा प्यारा कुछ 60-70 के करीब दोस्तों का गुलदस्ता है। ये बेसिकली जो जामिया इमदादिया स्कैनर रोड बड़ा जबरदस्त फैसलाबाद का फेमस मदरसा है, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से आज दोस्त आए हुए हैं। इनकी जो 2002 की क्लास है, और सब ये कैसे तमाम किया माशाल्लाह, कल बुखारी शरीफ का प्रोग्राम भी है, तो कैसे इकट्ठे किया इनको? असल में जब हम लोग 2002 में फारिग हुए ना, तो उस वक्त चूँकि मोबाइल आम नहीं था, साथियों के साथ राब्ता नहीं था, तकरीबन 18 साल साथियों का आपस में कोई राब्ता नहीं था। तो 18 साल के बाद हमारे एक साथी हैं मौलाना हसन नदीम साहब, उन्होंने ये काविश की है कि उन्होंने साथियों के राब्ते नंबर जमा किए, फिर उनको एक ग्रुप की शक्ल दी और फिर ये बात चलाई कि हम साथियों को एक जगह जमा होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में ये पहले साथी जमा हुए, वो भी इसी जगह इसी इदारे के अंदर। अल्लाह ताला ने मुझे ये साथ दिया कि मैंने यहाँ जमा किया इनको। उसके बाद ये दूसरी मरतबा, चूँकि अब वो ग्रुप बना हुआ है तो उसमें वक्तन फ़क्तन बात चलती रहती है कि साथियों को दोबारा कब जमा होना चाहिए, तो आज जो है वो ये साथी दोबारा जमा हुए। यानी कि 2002 के बाद साथी मिले, 18 साल बाद 20 में, और आज 25 में गुलदस्ता है। ऐसे हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं हाफिज नईम साहब, जो वो भी एक बड़ा ही प्यारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो दीन से जुड़ा हुआ है, और वो ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चियों को कल के शादियां भी होनी, तो दोनों तालीम याफ्ता हों बच्चे बच्चियां, सुभान अल्लाह। वो बेड़ा इन्होंने उठा लिया है, और वो इलाका गट्टी में बड़ा और इनका मदरसा हमने विजिट भी किया, और बड़ा जबरदस्त लास्ट में वहाँ पे बच्चों का जो खत्म कुरान भी था, तो बड़ी अच्छी बच्चियों ने तिलावत की। तो माशाल्लाह आपने भी बेड़ा उठाया, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला बंदे चुन लेता है। तो कैसा चल रहा है आपका निज़ाम माशाल्लाह, जो खत्म कुरान भी आपका लास्ट में सारा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक इनाम है हमारे लिए, और हमारे असातिज़ा किराम की दुआओं का नतीजा है कि उन्होंने हमें ये तरबियत हमारी की, और उनके इखलास की बरकत से ये काम हो रहे हैं। जी इदारों का, तारक भाई बच्चों का इदारा चला रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का इदारा चला रहा हूँ, और पूरी फिक्रमंदी के साथ। और इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, ये हमारे असातिज़ा का इखलास है कि उन्होंने जिस मुखलिसाना अंदाज में हमें पढ़ाया है, तो उन्हीं का इखलास आगे चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इखलास के साथ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हम इन इदारों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरपरस्ती हमारे बड़ों की है। हमारे मुशफिक उस्ताद हैं, हमारे मुहसिन हैं, हमारे मुरब्बी हैं मौलाना मुफ्ती एजाज साहब। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। तो ये उनकी शफकत है हमारे ऊपर। जी बिल्कुल, ये बड़ों की शफकत है। और आज जो ये जो क्या कहेंगे गुलदस्ता जो इकट्ठा हुआ है? जी, ये हमारे सब बड़े प्यारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। 8 साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मिल के इत्तेफाक राय से और खुशी से हमने पढ़ाई की है। और यकीन जाने जब ये खुशी से पढ़ाई की अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से पढ़ाई, क्योंकि हमारे जो असातिज़ा थे ना, उनका एक हमारे साथ एक शफकत वाला मामला था, और वो हमें उनका पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि हमारे अंदर शौक पैदा होता था पढ़ने का। हमने कभी बोझ महसूस नहीं किया था, शौक से पढ़े थे हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उसी का ये नतीजा है कि असातिज़ा से हमारी मोहब्बत भी उसी तरह कायम है, और हमारे दोस्तों से, हमारे साथियों से भी उसी तरह कायम है। आज हम मिले हैं तो अब ऐसे लगता है जैसे कोई ईद का समा हो, तो हमारे लिए तो ये ईद है, चांद रात है और सुबह ईद है इंशाल्लाह। और ये हम तहे दिल से हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ लेके आए।
अच्छा, वो इतने ये प्यारे दोस्त पूरे पाकिस्तान से हैं, आप फैसलाबाद बुला रहे हैं क्या? ये भी दोस्त आपको लाहौर, कराची, सादकाबाद, रेमिया खां बुलाते हैं कि सिर्फ ये फैसलाबाद के रास्ताबाद में खड़ी है? जी इंशाल्लाह, ये तो पूरे पाकिस्तान के उलमा के लिए ऑफर है ना कि वो अपने शहर में ये ऑर्गेनाइज कर लें, तो हम इंशाल्लाह लाजमी जाएंगे। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह लाजमी जाएंगे जी। अच्छा, जबरदस्त जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, पूरे पाकिस्तान से दोस्त हैं। बड़ा इन्होंने बताया कि हम जो उस्ताद की बड़ी मोहब्बत है, बड़ा जबरदस्त हम दोस्तों की तरह की, और बाकी अच्छे दोस्त हैं और आज दोबारा करते हैं। तो तार साहब क्या माशाल्लाह। मैं आखिर में मैं इदारे के बारे में ही कहना चाहूँगा अपने देखने वाले नाजरीन से कि हम इस वक्त इदारे के अंदर जो है ना वो बच्चों को बड़े प्यार से हम चला रहे हैं। वो जो एक यानी कि मदरसों का हवा और डर और खौफ होता है वो यहाँ नहीं है। मार नहीं प्यार। हाँ जी, मार नहीं प्यार। अच्छा। ठीक है ना जी। वालिदैन को साथ लेकर चलते हैं, बच्चे की रिपोर्ट वालिदैन को भी देते हैं, कोशिश करते हैं कि वालिदैन बच्चे को तरगीब दें, कुछ हम दें, बच्चा प्यार से पढ़े। ठीक है ना। तो मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि विज़िट करें इस मदरसे का, और ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इस इदारे पे एतमाद करें और अपने बच्चों को यहाँ तालीम के लिए लेकर आएँ। जी बिल्कुल, अदारे को विजिट करें, लाजमी विजिट करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ दीन की तालीम है, दुनियावी तालीम है। जब बच्चा यहाँ से इंशाल्लाह पढ़ के निकलेगा तो वो आगे स्कूल में जाके उसको मुश्किल नहीं होगी। तो आप लाजमी विजिट करें, और ये आपके जो हमारे नेबर में जो एरिया है गुलिस्तान कॉलोनी और इसके, उनके लिए एक बड़ा ही कीमती तोहफा भी है और सरमाया भी। नहीं तो लोग ऐसे मदारस को ढूंढते हैं। हम अपना जो हमारे मेज़बान हैं, हम उनका बड़े शुक्रगुज़ार हैं। ताहिर भाई भी, तारिक भाई भी, हाफ़िज़ साहब भी, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया। और सुबह वो हाफ़िज़ ताहिर साहब नज़र नहीं आ रहे, सुना था उन्होंने नाश्ता भी करना है, तो पता नहीं। तो उसके बाद कल ख़त्म कुरान है जी जामिया मिलादिया में, आप वहाँ भी हैं जुम्मे के बाद, और उसको ज्वाइन करें जी।